بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وآل ارباب مدانش گفتگو یہ چل رہی ہے کہ ہم ایمان لے آئیں کیا فائدہ ہوگا، کیوں ہم ایمان لیں، یعنی فلسفہ ایمان کیا ہے اور فلسفہ عمل کیا ہے۔ کچھ گفتگو ہوئی تھی اس ضمن میں ایمان کے فلسفے کے سلسلے سے، اور خداوند عالم جس ماہ مبارک میں ہم اور آپ جس کی برکتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس میں خطاب جو ہے صاحبان ایمان سے، اے صاحبان ایمان تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے اسی طرح سے کہ جس طرح تم سے پہلے جو لوگ تھے، تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ پہلے والے کیوں واجب قرار دیا گیا ہے؟ خداوند عالم نے فلسفہ بھی بیان کر دیا تاکہ تم صاحبان تقوی ہو۔ تو پتہ یہ چلا سب سے اہم فلسفہ روزہ، فلسفہ صیام یہ ہے کہ انسان روزے دار جب 30 دن پورے ہو جائے تو تقوی کی سند حاصل کرے۔ یہ اہم مسئلہ ہے۔ تو عرض یہ کیا گیا تھا کہ ایمان دو طرح سے، ایک ایمان نظری، ایک ایمان عملی، جسے کیا کہتے ہیں جاننا۔ ایمان نظری سب جو ہے یہ توحید فطری ہے، جس طریقے سے جانور بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ آغا سید شبر کی مشہور معروف کتاب حق الیقین ہے، اس میں انہوں نے 3 بڑے لطیف ایمان فطری کے واقعے نقل کیے۔ سب سے پہلا واقعہ وہ فرماتے ہیں جناب سلیمان نبی اللہ پیاس کی غرض سے گھر سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک چونٹی ناملا چونٹی جو ہے پشت بل لیٹ کر اپنے پیروں کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرما رہی ہے۔ کیا فرماتی ہے؟ کہتے اللہم انا خلق من خلقک ولا غنا بکا عن رزقک ولا تهلكنا بذنوب غیرنا۔ چونٹی فریاد کرتی ہے، بالکل یعنی جاپنی کے عالم میں ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، کس کے طرف توجہ کرتی ہے؟ خداوند عالم کی طرف۔ کیا کہتی ہے؟ بار الہ ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، اور اگر تو مجھے رزق نہ دے تو ہم تک رزق نہیں پہنچ سکتا، اور دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک۔ جیسے ہی جناب سلیمان نبی اللہ نے اس کی گفتگو سنی، کہا جا تیری حاجت پوری ہو گئی تیرے غیر کے وسیلے سے۔ اب آپ نے دیکھا ہمیں جو عبرت لینا، اس میں عبرت کیا لینا ہے؟ یہ چونٹی آخر میں جب مشکل آئی تو اس نے کہا توجہ خدا کی طرف، کیا ہم سے یہی ایمان مطلوب ہے کہ جس طرح ایک چھوٹی سی مخلوق، اور اس کے بعد اس کے ذرا جملے دیکھیں اور دوسرے روایات سے بھی استفادہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ جو ہے
वो बंदा नहीं करता, यानी जो साफ सुथरा बंदा है वो भी किसी के गुनाह के आज़ाब में मुब्तला हो जाता है। क्यों ऐसा है? उसकी वजह ये है कि अगर हमारा रहन सहन, उठना बैठना गुनहगार लोगों तक रहेगा, तो अगरचे हमने वो गुनाह नहीं किया होगा, लेकिन उनके साथ रहने की वजह से क्या है, हम उसके गुनाह के आज़ाब में मुब्तला होंगे। ज़ियारत आशुरा आप कर सकते हैं, क्या ऐलान करते हैं, जिसने शिरकत की, जो राजी भी हुआ उस पर भी क्या है, लान। क्यों है? क्योंकि जुल्म पर राजी रहना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो जालिम की हमनशीनी, गुनहगारों की हमनशीनी इख्तियार करना भी ये गुनाह है। तो एक नमूना आपने देखा। दूसरा नमूना उसी किताब से, हक़्क़ुल यकीन से, कहते हैं कि एक जमाने में बहुत ज्यादा कहत साली, कहत, न कोई पैदावार है, न आसमान से बारिश है। आज आप देखें सिस्टम हो गया है, मशीनों के जरिए से ट्यूबवेल वगैरह का इंतजाम हो जाता है पानी। पहले जो खेती वगैरह होती थी कैसे होती थी? बारिश से, या नहर वगैरह में पानी है, अगर बारिश न हो तो तालाब नहर जो खुश्क हो जाती है। हालत ये पहुंची कि खुश्क साली है, लोग जो है तलबे बारा के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए सहरा की तरफ निकले, दुआ कर रहे हैं, लेकिन उनकी दुआ मुस्तजाब नहीं हो रही। उसमें से एक शख्स जो है पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर जब चढ़ता है क्या देखता है, बुलंदी पर गया, शायद वजह यह रही होगी ताकि वहां से कहीं पानी दिख जाए। बुलंदी से सहरा में गया, क्या देखा कि एक हिरनी है जो प्यास से तड़प रही है, पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही है। उसकी नजर एक तालाब की तरफ पड़ी। जब तालाब की तरफ गई है, क्या देखा, तालाब खुश्क है। सारी आस उसकी टूट गई। उसके बाद वो शख्स कहता है, ये हिरनी अपने चेहरे को आसमान की तरफ बुलंद करती है, खुदा से फरियाद करती है और मदद मांगती, बार बार चेहरे को उठाकर खुदा की तरफ कर रही का। इसी अतना में मैंने देखा एक बादल आया और भरपूर बारिश हुई, पूरा तालाब भर गया। हिरनी ने अपनी प्यास बुझाकर वहां से चली। आपने देखा आखिरी वक्त में क्या, ये हिरनी किसकी तरफ आई? ईमान है ना खुदा पर। तीसरी मिसाल कहा, एक फखर राज़ी ने नकल किया, इसी किताब हक़्क़ुल यकीन में आए से सुपर, बहुत ही अच्छी अकायद के इल्म कलाम की किताब है। और उसमें फरमाते हैं, एक शिकारी कहता है, मैं शिकार के लिए निकला, एक हिरनी थी, उसके साथ उसका एक छोटा सा बच्चा था। जब मैं शिकार करना चाह रहा था, हिरनी समझ गई कि इससे मैं अपने बच्चे को बचा नहीं सकती, बच्चे को छोड़कर भाग गई। जबकि माँ की मोहब्बत का तकाजा क्या होता है, अगरचे जानवर अपने आप को क्या करती है, टकराती है खतरात से बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन छोड़कर चली गई और बच्चे को शिकारी ने पकड़ लिया। उसके बाद हिरनी ने फरियाद करना किससे शुरू किया? खुदावंद आलम। इसने भी अपने सर को खुदा की तरफ, आसमान की तरफ बुलंद किया, मदद तलब करे। शिकारी कहता है कि हम चंद कदम चले ही थे कि अचानक मेरे रास्ते में एक गड्ढा आया, मैं गिर गया, हिरनी का बच्चा छोड़कर मुझसे फरार हो गया और हिरनी अपने बच्चे को लेकर चली गई। आपने देखा इन मिसालों में क्या है कि आखिरी वक्त में, मुश्किल के वक्त में जानवर भी किसकी तरफ रुजू करते हैं, किसकी पनाह में जाते हैं? खुदावंद आलम की तरफ। इसी तरह उसूल काफी की रिवायत है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आता है, कहता है, दुल्लनी अला माबूदी, मौला मेरे माबूद की तरफ मेरी रहनुमाई करे। इमाम ने कहा, रकीबत सफीना, क्या कभी तुमने
कश्ती की सवारी की है? कहा हाँ। कहा तेरी कश्ती टूट गई थी? कहा हाँ। कहा फिर क्या हुआ? कहा कश्ती का एक तख्ता लकड़ी का, उसके सहारे मैं समंदर में थपेड़े खाता रहा। कहा तेरी सारी जो है उम्मीद टूटी थी कि अब दुनिया में से कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। कहा हाँ। का उस वक्त तेरे दिल में क्या ख्याल आया? आपको मालूम है कि एक इंसान समंदर के अगर मझधार में फंसे, जहाज हो या कश्ती टूट जाए, उसे पता है कि मेरे बाजू में कितनी ताकत है, क्योंकि एक महदूद तक तैराकी कर सकता है। पूरे समंदर को जो है पार करना ये आम इंसान की बस की बात नहीं। कहा जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी तो तेरे दिल में क्या ख्याल आया? और मेरे दिल में एक कुदरत का ख्याल आया, एक ताकत का ख्याल आया, इलाही ताकत जो मुझे बचा सकती है। कहा वही तो खुदा है। कहा वही खुदा। उसी खुदा ने उस बंदे को निजात दी, इमाम तक। इमाम को पता है कि इसके साथ वाक़या है। यहाँ हम तालिबे इल्म हैं, यहाँ हमें दर्स क्या लेना है ईमान से? क्या ईमान का यही तकाज़ा है कि जब हम मुश्किलात में फंसे तो जानवरों की तरह या उस जो है राकिब सफीना की तरह खुदावंद आलम की बारगाह में जाएं? ये तकाज़ा है। इतनी मिक़दार तो हर मजबूर आदमी जो है, हत्ता जो मोमिन नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, जो कि तौहीद फितरी है, ये जानवरों की जो 3 मिसालें मैंने आपके सामने दी, इसी मतलब तक पहुंचने के लिए इतनी मिक़दार में ईमान और मारिफत तो एक जो है लिसान बेज़बान जानवर भी रखता है, उसकी भी मदद पूरी होती है और खुदावंद आलम पूरी करता है। हमसे ईमान का तकाज़ा क्या है? हमसे ईमान का तकाज़ा ये नहीं है, इस मिक़दार में नहीं है, बल्कि हमारे आइम्मा और जो खुदावंद आलम ने अंबिया भेजा कि हर वक्त जो है हमारा अमल क्या हो, दायरे और राह ईमान से हटने न पाए। हमारा सोना भी हो ईमान के तकाज़े के मुताबिक हो, रफ्तार और गुफ्तार तमाम इस छोटी सी जिंदगी में सांस भी ले तो किस कुर्बतन इल्लाह, इंसान अपनी सांस लेने को भी इबादत बना सकता है, सोने को इबादत बना सकता है, अपने अहलो आयाल के लिए जो ज़हमत करता है वो भी इबादत है और इबादत बना सकता है। तो हमसे जो ईमान का तकाज़ा हो, क्या ईमान क्या है? इमाम क्या फरमाते हैं? मारिफतुल बिल क़ल्ब, इक़रारुल लिसान व अमलुल अरकान। ये है ईमान का तकाज़ा। तो अगर हमारी जिंदगी से अमल हट जाए तो वो ईमान नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी कुल का एक जुज़ मुनहदिम हो जाए तो वो कुल बरकरार नहीं रह सकता। ईमान कितने हैं? 3 चीजों से मिलकर बना है। एक क्या है? हम क्या करें? दिल से मारिफत। दूसरे क्या है? ज़बान से गवाही। तीसरी अमल अरकान क्या करें? उसकी गवाही। अब आइए जनाब, एक मुख्तसर सी गुफ्तगू, हम ईमान क्यों लाए, हम अमल क्यों करें? एक सवाल है कि आज नौजवान पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटी में कहते हैं हम अमल क्यों करें। कभी जो है ये कभी कहते हैं जब वो तंग आ जाते हैं, ये मौलाना ने कभी जो है रोजे को वाजिब हमारे पर कर दिया, कभी नमाज को वाजिब कर दिया, कभी ज़कात को हमारे पर वाजिब कर दिया। ये मौलाना कुछ भी नहीं कर सकते। ये तमाम जो वाजिबात है क्यों वाजिब है, क्या फलसफा है इसका, हम अमल क्यों करें? सवाल है कि नहीं? माह मुबारक में हम रोजे क्यों रखें? तो ये आ गए आयत जो आपके सामने सरनामे सुखन करार दिया गया है ताकि हम मुत्तकी बने। ठीक है, मुत्तकी क्यों बने भाई? दूसरा सवाल, क्यों मुत्तकी बने? क्यों जो है इन चीजों से हम बचे, जो है एक मुक़य्यद अपनी जिंदगी को एक कैद मुक़य्यद बना लें, जकड़ ले, अपने आप से आजाद खुदा ने पैदा किए, हम आजाद रखेंगे। इसका बहुत से हिकमतें हैं, बहुत से फलसफे। एक फलसफा ये है कि मालिक मुख्तार ने अपनी कुदरत कामिला से
बशरियत जैसी कोई मखलूक नहीं पैदा की, बेहतरीन मखलूक। आप ये बताएं, दुनिया में एक मिसाल ले लेते हैं ताकि बात आसान हो जाए कि अगर कोई कंपनी है, बहुत अच्छी गाड़ी बनाई, उसने पता कैसे चलेगा कि इसकी गाड़ी बहुत अच्छी है, सबसे टॉप क्लास की, कैसे पता चलेगा? जब वो इस्तेमाल होगी, कोई काम करेगी, मैदान अमल में आएगी, मुकाबला होगा, तब तो पता चलेगा भाई इस कंपनी की गाड़ी बेहतरीन है। खुदावंद आलम ने इस बेहतरीन मखलूक के सर पर अशरफ मखलूकात का ताज रख दिया। पता कैसे चला? चले फला साहब जो है ज्यादा बुलंद हैं दूसरे से, दूसरे जो है ज्यादा बुलंद, कैसे पता चलेगा? दिल से। हमने कहा तौहीद नजरी तो हैवानों के पास भी है, पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? सोच खुदा की कसम, बड़े जो है जिम्मेदारी के साथ जो तवज्जो फरमाएंगे, सोने की कदर न होती, सोने की कोई कदर कीमत ना हो उस वक्त तक नहीं होती जब तक वो पहाड़ों में पहाड़ों के साथ रहता है। हीरे की कदर कुछ भी नहीं है, सब जमात में मुश्तरक हैं, जानदार चीजों एक जैसी हैं, लेकिन कदर कब होती है? जब इसको मशीन में लाकर इसे तराश कर और इस तरह बना दिया जाता है पिघला के, ये किसी के गले की जीनत या अंगूठी की शक्ल में उंगली की जीनत बन जाए। यही है ना? तो इस इंसान की कदर कीमत कब होगी? जब ये इंसान तमाम दुनियावी जो हैवानियत है इसके अंदर, जब उससे निकल कर अपनी मानवियत को मेराज अता करेगा, तब कोई सलमान बनेगा, कोई अबूबकर बनेगा, कोई कमर बनेगा। सवा सहाबे नबी थे, सवा सहाबे पैगंबर थे। सलमान को किस चीज ने मुतमय्यज कर दिया? किस चीज ने? सब जो है कलमे शहादतन पढ़ते थे, मैदान अमल में आप कैसे पता चलेगा एक सूरमा बहुत बड़ा बहादुर है? सब दावा करेंगे जो घर में आप देखें पैगंबर के साथ जितने थे, आज तक उन्होंने उनकी तलवार से किसी को जख्म भी नहीं लगा, लेकिन उन्हें जो खलीफतुल मुस्लिमीन और सूरमा सब कुछ कहा जाए, ऐसे तो सबको साबित किया जाएगा। मौला कायनात की शजाअत, आज आप कसीदा क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? सारे बनी हाशिम थे, ईमान हमारा है, कुछ इमाम होता है, लेकिन अगर ये कारनामा बद्र में 70 आदमी मारे गए, 35 को सिर्फ मौलाए कायनात मारे इसी माह रमजान में, कितने बड़े बड़े। तो पता ये चला इंसान में निखार कब आता है? अमल से। इसी की बुनियाद पर खुदावंद आलम हमें जज़ा देगा। तो असल मसला है कि अमल, फलसफे अमल ये है कि खुदावंद आलम मौका दे रहा है कि दुनिया में इस जो हमने आपको उम्र अता की है 60 साल 50 साल, वही आप देखें इंसान मुरक्कब है, एक जंबा खाकी है, एक जंबा नूरी मानवी है। मिट्टी जो हमारे अंदर है, इसका तकाजा ये है कि हमें पस्ती की तरफ खींच कर ले आए। क्या? सुस्ती, सुस्ती है, आराम, हमें जख्मत न करना हो। आप देखें जिस्मानी एतबार से कितने जो है ऐसे अफराद मिल जाएंगे जो बिल्कुल मोटे ताजे हैं, लेकिन मैदान अमल में किसी काम की नहीं होती। ऐसा है कि नहीं? क्यों? कि उनके ऊपर किस चीज का हलवा है? खाकियत का, जो इसके अंदर खाकी चीज है उसका गलबा है। लेकिन बाद आप सुरमा को ऐसे देखेंगे जो मुमिनीन की सिफात बयान हुई है, उनके जो है पेट उनकी कमर से जो है लिपटे होंगे, लेकिन मैदान अमल में उनसे आगे कोई नहीं। तो क्यों ऐसा? क्यों फर्क ये क्यों है? फर्क ये है, आप देखें माह मुबारक में बाद अफराद जो है रोजा रह रहे हैं,
जैसे यहाँ पर ड्यूटी भी करनी है, अब जो आपका काम क्या है, आप तनख्वाह ले रहे हैं, ड्यूटी पूरी करें। कहते हैं मैं रोजा हूं, मैं इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। क्यों? रोजा है तो क्या मतलब है, ये एक और इबादत है। रोजा तो इंसान को जो है बुलंदी तक ले जाता है। उस इंसान में जो अगर दिन में 2 टाइम खाना ना मिले तो परेशान हो जाता है, रोजा ऐसी ताकत देता है कि नहीं तुम 24 घंटे भी रह सकते हो। अगर तुम 12 घंटे रह लिए, अगर वक्त पड़ेगा तुम इससे ज्यादा भी भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते हो। इसी वजह से जो है तो रोजा जब ताकत देता है, तो अगर रोजे की वजह से कोई कहे नहीं हम अगर मुताला हम पढ़ नहीं सकते, कुरान बाज़ अफराद ऐसे होते हैं कि रोजे की वजह से हत्या सवाल पूछे जा रहे हैं, कि मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये उलमा से फिक्र सवाल पूछे जा रहे हैं कि मेरा शौहर जो है रोजा रहता है और घर को जहन्नम बना देता है रोजा रखने की वजह से। बाज़ अफराद से तो पता चला ये फलसफे अमल से नाश है। इसमें वही खाकियत रही तो रोजा रहा है, लेकिन इसके तमाम जो है फिक्र किसकी तरफ है, भूख और प्यास है। इसी वजह से मासूम फरमाते हैं बाज रोजेदार ऐसे होंगे कि जिनके रोजे का माना सिवाय भूख और प्यास की कुछ और नहीं। अल्लाह अकबर, इससे लुत्फ अंदोज नहीं होंगे। तो फलसफे अमल क्या है, खुदावंद आलम ने हमें मौका दिया। वैला तमाम को खुदावंद आलम ने पैदा किया, सबको जो है जन्नत में लेकर चला जाए, सबको आला दर्जा नहीं। खुदावंद आलम ने हमें मौका दिया कि तुम्हारे अंदर, एक मौला अमीर ने क्या इरशाद फरमाया, अतज़अमु अन्नका जिर्मुन सगीर, क्या तुम्हें पता है तुम छोटी सी मखलूक हो खुदावंद आलम की, वफीकम तवा आलमुल अकबर, जबकि तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा आलम पोशीदा है। क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका, यानी अगर इंसान अपने आप को संवारना चाहे, इस छोटी सी उम्र में बहुत आगे ले जा सकता है। खुदावंद आलम ने तमाम मौके फराहम किए हैं, लेकिन ये इंसान की अपनी कोताही होती है कि जो खाकी जंबा है इसके अंदर है, उसी के तकाजे पर अमल करता है। खाक हमेशा मिट्टी को आप ऊपर उछाले तो मिट्टी किधर आएगी, जमीन की तरफ आएगी, इसमें जाज़िबियत है पस्ते की तरफ। लेकिन मानवियत रूह और नूर जो है बुलंदी की तरफ जाता है। तो अब ये इंसान अपने आप को अगर संवार लेता है, वो सफेद मलाइका तक पहुंच जाता है, जवारे मासूमीन उसे नसीब होती है। लेकिन यही इंसान अगर हैवानियत वाले तकाज़े को, भूख और प्यास, शोहरत तलबी, दुनिया के ख्वाहिशात रहे, ये पस्ती की तरफ आता है, फिर ये हैवानों से भी बढ़ता है, अज़ल्लु सबीला, उनसे ज्यादा भी गुमराह होता है। बहुत ज्यादा गुफ्तगू तुलानी न करते हुए खुदावंद आलम से इल्तिजा है, खुदावंद आलम सबसे पहले हमें मारिफत ईमान और फलसफे अमल की बसीरत कि हम समझे ईमान है क्या, और जितना भी हो सके हम वो सना करें कि खुदावंद आलम ने हम सब के दिलों को नूर ईमान से मुज़य्यन किया। कितने ऐसे हैं अफराद जिनके दिल जो है तारीख का किला बने हुए हैं, शैतानत है। अल्लाह ताला ने हमें और आपको नूर ईमान, मोहब्बत अहले बैत, जवार अमीरुल मोमिनीन, ये ऐसी नेमतें हैं, इसकी कदर पता चलेगी रोज़े महशर, उस वक्त पता चलेगी कि इतने जो है दौलत, ऐसी दौलत खुदावंद आलम ने हमें दिया। इसी के साथ हम बारगाह इलाही में दस्त बदस्ता ये दुआ करें, बार इलाहा, ये कोरोना जैसी वबा और वबा जो पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है, कितने मोमिनीन के मैसेज और फोन आ रहे हैं, पालने वाले दुनिया को खुसूसन मोमिनीन इकराम को इस वबा